Hello students, I am Pushpanjali from CBSE English classes. Before watching my video, please subscribe my channel and press the bell icon to get the latest notification. Now today we will read rules in subject verb agreement. It is also known as subject verb concord. So subject verb concord's meaning is also agreement. Concord means also agreement. So what is this subject verb agreement? What is the basic rules of subject verb agreements? So subject verb agreement basic rule is singular subjects must have singular verbs and plural subjects must have plural verbs. So see, subject and verbs must agree in number. This is the cornerstone rule that forms the background of the concept. So what is the concept of this subject verb agreement? What is subject verb agreement? Subject verb agreements means that subject must agree with verb. Then only our sentence will be correct. So there are several rules for that. The first rule is what? Subject should agree with verb, means if the subject is singular, we want the singular verb. See here, this is the golden rule. First rule is the golden rule of subject verb agreement, that if there is a singular subject, it means the verb ends in S. See here, my mom respects me. Verb end with S now. Mom is here singular. So we have here written singular verb. How we will identify that singular verb and plural verb? Always remember, when we add S or ES to a verb, it becomes singular in number. Verb forms are already, they are in plural form. When we add S or ES to noun, it becomes plural. But it is just opposite of the verb. It happens opposite in the verb, that if we add S or ES in verb, it becomes the singular. So here you can see also, if there are plural subject, then the verb does not end in S. See, my mom and dad. Plural here, subject is plural, na? So respect. Respect is what? Plural here. If we will add S here, then it will become singular. Okay. So we understood that if a singular subject takes a singular verb and plural subject takes a plural verb. So it is, I think it is very much clear to you all children, that if we add in the verb S or ES, it becomes the singular. See, the ocean roars the distance. Ocean is singular here and roars is what? Singular, because singular subjects need the singular verb. We have added S here, so it becomes the singular. Second one you can see, Marla plays the trumpet. Here plays is here singular because this subject is singular. So we have chosen here singular verb. Squirrels eats the seeds from the bird feeder. Squirrels are plural here. You can see squirrel subject is plural. So we have used here plural verb, that is eat. Getting all of you? Now see, there are many rules of subject verb agreements. If the subject is the title of the books, movies, novels, etc., they always takes the singular verb. If there is the subject of a sentence is the title of the book, अगर किसी भी sentence का title जो है, book का title है, movies है, novels है, तो it will take always singular verb. तो वो हमेशा singular verb ही लेगा. The Last of the Mohicans is a nice movie. अब ये देखिए, ये क्या है? टाइटल है. तो ये कौन सा वर्ब लिया है? इज लिया है ना? तो if we will use here, Titanic is a very nice movie. तो Titanic is the name of a movie. Is a nice. So is here what? Singular verb. So always remember, they will always take the singular verb. Now, if each, everyone, everybody, everyone, anybody, someone, no one, somebody, it will always take the singular and requires the singular verbs. See, if अगर किसी sentence में, if any sentence, these acts as a sentence, this act as a subject
of the sentence, then it will always take the singular verb. अगर किसी भी कोई भी sentence each से everyone, everybody, anyone, anybody, someone, somebody से शुरू होता है, subject होता है sentence का, तो वो हमेशा singular verb लेगा. आप देख सकते हैं each of the girls sings well. each of the each is here. each यहाँ पे क्या है? subject है. तो subject के साथ हमने क्या लिखा है यहाँ पे? sings. तो यहाँ पे गर्ल्स के हिसाब से नहीं लगा है, यहाँ पे ईच के हिसाब से लगा है कि बिकॉज कई इन एनी सेंटेंस इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ईच, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, देन इट विल ऑलवेज टेक द सिंगुलर वर्ब. एवरी वन ऑफ द केक्स इज गॉन. नाउ सी हियर ऑल्सो केक्स, केक्स है यहाँ पे प्लूरल, फिर भी हम लोग यहाँ पे सिंगुलर लिए हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरी वन है. ठीक है. नाउ द प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब. ठीक है. सो इट इज़ वेरी क्लियर, यू के साथ यू हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेता है, यू कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लेता है. यू वर इन्वाइटेड टू कम. सो यू के साथ देखिए वर आया, प्लूरल वर्ब आया. यू आर आस्क्ड टू क्लीन द रूम, अगेन आर आया. तो वी नो एज पर द रूल इज टेलिंग दैट यू ऑलवेज टेक्स द प्लूरल वर्ब. यू हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेगा. इफ टू सब्जेक्ट्स, one single and one plural, are connected by either or, neither nor, the verb agrees with the nearer subject. अब कोई भी सेंटेंस अगर either और neither nor से कनेक्ट होता है तो उसके सबसे नज़दीक में जो होता है ना नाउन, उसके हिसाब से हम लोग इसमें वर्ब चुनते हैं. देखिए neither the players nor the coach is joining. अब इज यहाँ पे क्या है? वर्ब है, सिंगुलर है. क्यों सिंगुलर है? क्योंकि कोच यहाँ पे सिंगुलर है. सबसे नाइदर, अगर कोई भी सेंटेंस आइदर और नाइदर नॉर से शुरू होता है, ठीक है, तो उसके सबसे वर्ब के जो सबसे नज़दीकी नाउन होते हैं उसके हिसाब से हम लोग चुनते हैं, वर्ब चुनते हैं. तो देखिए कोच यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के हिसाब से हमने सिंगुलर लिया है, इज लिया है. Either the conductor or the singers are attending the concert. So देखिए यहाँ पे either और के साथ ये भी सेंटेंस शुरू हुआ है, इसके साथ हम लोग आर लिए हैं. क्यों आर लिए हैं? Why we have taken आर? Because singers यहाँ पे प्लूरल है. सिंगर्स क्या है? प्लूरल है. तो प्लूरल के हिसाब से हम लोग प्लूरल लिए हैं. और नियम क्या कहता है? अगर कोई भी सेंटेंस आइदर और नाइदर नॉर से शुरू होता है, कनेक्ट होता है, तो उसके सबसे वर्ब के सबसे पास में आने वाले नाउन के हिसाब से हम लोग इसमें वर्ब चुनते हैं. ठीक है. नाउ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स joined by either or neither nor take a singular verb. अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर वो आइदर और नाइदर नॉर से ज्वाइन होता है तो वो हमेशा ही सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है. ठीक है. अब देखिए आइदर मम्मी और डैडी इज कमिंग विथ मी एट आउटबाउंड. सो यहाँ पे देखिए आइदर से शुरू हुआ है, सिंगुलर है ना, मम्मी डैडी, तो यहाँ पे हम लोग इज, हमेशा वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा. नाइदर फेरेडी नॉर ढुलेक इज वेटिंग फॉर यू. Again see, it is the started with either or neither nor. It will always take a singular verb. दिमाग में बैठा के रखना है, कोई भी सेंटेंस अगर either और neither nor से शुरू हो रहा है तो वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा. ठीक है. अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स joined by and require a plural verb except when they mean one thing. अब देखिए कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइन हो रहा है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइन हो रहा है तो वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा. ठीक है. लेकिन सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन अगर वो एक ही चीज़, दो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो क्या लेगा? अपने हिसाब से वर्ब लेगा. ठीक है. देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब. लेरी एंड मर्सी आर रीडिंग नॉवेल्स. अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेगा. प्लूरल वर्ब लेगा. देखिए लेरी एंड मर्सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स है ना, एंड से जोड़ रहे हैं, इसको एंड से जोड़े हैं तो कौन सा वर्ब लिया है? प्लूरल वर्ब लिया है. लेकिन अगर सेम सेंटेंस किसी एक चीज़ के बारे में ही बताता है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा. माई टीचर एंड फ्रेंड इज हियर. अब जो मेरा टीचर है ना, मेरा टीचर और फ्रेंड इज हियर, सो हियर इट इज मीनिंग द सेम थिंग. वन थिंग इट इज टोल्ड हियर, टीचर एंड फ्रेंड, सो इट इज सिंगुलर हियर.
The indefinite pronouns several, few, both, many, others are always plural. अब ये कुछ indefinite pronouns हैं जो हमेशा ही plural verb लेते हैं, ठीक है. Be keep in your mind that if a sentence subject is both, few, many, then several, then it will always take the plural verb. बोथ वर आस्किंग टू बी फ्रीड. देखिए बोथ से शुरू हुआ है ना, सब्जेक्ट क्या है, बोथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या आया है, प्लूरल आया है ना. सो बोथ वर आस्किंग टू बी फ्रीड. सेवरल आर सीकिंग जस्टिस. नाउ अगेन सेवरल एंड द रूल सेड इफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सेवरल, बोथ, मेनी, देन इट विल टेक द प्लूरल वर्ब. When any of the following indefinite pronoun is the subject, the verb is singular. अब इसमें देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबडी है, ईच वन, ईच है, नो वन, अनदर, एनीबडी, नोबडी, एवरी, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समबडी, समवन, अगर इसमें से कोई भी है तो वो हमेशा ही क्या लेता है, कौन सा वर्ब लेता है, it always take the singular verb. Okay, every man and woman in this hall is a member. So always remember that indefinite pronoun, ठीक है, act as a subject, the verb is singular always. इससे अगर कोई भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट के रूप में ये यूज हो रहा है तो ये हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा. Expressions of time, money, weight and distance are singular even the form is plural. अब देखिए, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर टाइम डिनोट कर रहा है, मनी डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, तो वो क्या होगा, हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा. ठीक है. 2 years is a long time to wait. अब देखिए 2 years क्या है, टाइम इंडिकेट कर रहा है ना, ईयर्स क्या है, प्लूरल है, फिर भी हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि नियम कहता है अकॉर्डिंग टू द रूल दैट इफ देयर इज टाइम, वेट एंड डिस्टेंस देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब. सो वी हैव यूज्ड हियर सिंगुलर वर्ब दैट इज. $1 million was given back to the owner. $1 million. Now again dollars, then also we have used here singular because according to the rule money, weight and distance, time and distance always takes the singular verb. Now certain nouns though plural in form are singular in meaning and therefore take singular verbs. अब कुछ ऐसे जो verbs है ना, कुछ ऐसे जो forms हैं, ठीक है, जो कि सब मैथमेटिक्स क्या है, देखने में तो लग रहा है प्लूरल टाइप का, लेकिन ये है सिंगुलर. मैथमेटिक्स ऑलवेज टेक्स द सिंगुलर वर्ब. मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज क्या यहाँ पे ले रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है. द लेटेस्ट न्यूज इज अलार्मिंग टू द पब्लिक. सो लेटेस्ट न्यूज आर अलार्मिंग नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूज़ यहाँ पे प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे. मैथमेटिक्स, न्यूज़, ये हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेता है. When fractions are used, the verb agrees with the object of the phrase. अभी बहुत ईजी है सेंटेंस समझने के लिए. देखिए फ्रैक्शंस जब यूज होता है, जैसे 1/2, 1/4, 2/3, ये हमेशा फ्रैक्शन हम बोल रहे हैं ना. तो जब भी कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट फ्रैक्शन में है, 1/2 ऑफ द केक वॉज कंज्यूम्ड, तो जो भी फ्रैक्शन में वर्ड रहेगा, जैसे 1/2 ऑफ, अब उसके बाद जो भी नाउन आएगा उसके हिसाब से हम वर्ब चूज करेंगे. अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चूज करेंगे, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब चूज करेंगे. अभी देखिए फर्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल, 1/2 ऑफ द केक वॉज कंज्यूम्ड. अब केक यहाँ पे क्या था, 1/2 के बाद केक नाउन है और नाउन यहाँ पे सिंगुलर है, तो हम लोग कौन सा वर्ब चुने हैं, तो सिंगुलर वर्ब चुने हैं. ठीक है. 1/4 ऑफ द एम्प्लॉइज, फिर रूल क्या कहता है, फ्रैक्शन के बाद जो भी नाउन आएगा उसके हिसाब से हम लोग वर्ब को डिसाइड करना है. ठीक है. तो फ्रैक्शन के बाद 1/4 ऑफ द एम्प्लॉइज यहाँ पे क्या है, प्लूरल है. ठीक है. तो वी हैव टेकन द प्लूरल वर्ब दैट इज वर. सो 1/4 ऑफ द एम्प्लॉइज वर अटेंडिंग द सेमिनार. Clear now? So always remember when there is a fraction and after that the noun will decide the verb. Okay.
When the word is preceded by a, it takes a plural verb, and when it is preceded by the, it takes a singular verb. तो अब देखिए, अब a number of students, तो a number of the students है, तो ये कौन सा verb लेगा? हाँ, plural verb लेगा. दिया गया है ना, नियम क्या कहता है? A will take a plural verb. So a number of students are waiting outside. तो ये plural verb लिया. और the number, the क्या लेगा? the लेगा singular verb. तो the number of students outside is waiting, not recorded yet. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? the number था, तो हम लोग क्या लिए? सिंगुलर वर्ब लिए. तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, इफ देयर इज अ नंबर देन इट विल टेक द प्लूरल वर्ब, एंड इफ देयर इज द नंबर देन इट विल टेक द सिंगुलर वर्ब. एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन एज आर कंसीडर्ड प्लूरल. अभी कभी कभी सेंटेंस में क्या होता है ना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एडजेक्टिव होता है. ठीक है, तो जब भी हमारे सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट एडजेक्टिव होगा तो हम लोग वहाँ पे क्या लेंगे? ऑलवेज वी विल हैव द प्लूरल वर्ब. ठीक है, अब देखिए, द पुअर आर टू बी हेल्प्ड. द पुअर यहाँ पे क्या है? द पुअर इज एडजेक्टिव. द पुअर सबको पता है ना एडजेक्टिव क्या होता है? विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव क्या है? द पुअर. तो द पुअर के बाद क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा. तो आर क्या है? यहाँ पे प्लूरल है. तो द पुअर are to be helped. The efficient are what this country needed. So again the efficient क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव के साथ अभी हम लोग को क्या लगाना है? यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाना है. तो आर क्या है? प्लूरल वर्ब है. Now see, title of the books, plays, articles, movies, etc. are regarded as singular even though words in the title may be plural. अभी क्या होता है ना, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर टाइटल किसी बुक का टाइटल है, कोई प्लेस है, कोई आर्टिकल है, कोई मूवी है, तो हम लोग अगर वो प्लूरल भी है तो भी वी विल यूज देयर सिंगुलर वर्ब. ठीक है, हमेशा याद में रखना है कि टाइटल किसी बुक का टाइटल, प्लेस, आर्टिकल, मूवी, कहीं पर भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो अभी हम लोग उसमें सिंगुलर वर्ब ही लेंगे. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज अ मस्ट गुड नॉवेल. तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे क्या? प्लूरल है ना एक्सपेक्टेशंस, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि एक टाइटल है ना, किताब का टाइटल है, तो हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लिए हैं. Collective nouns may be singular or plural depending on whether the individual members are acting individually or collectively. अब देखिए, कलेक्टिव नाउन जो है ना, जनरली 90% दे टेक द सिंगुलर वर्ब. ठीक है, आंख बंद करके बच्चों को जहाँ कंफ्यूजन होता है ना, दे यूज द सिंगुलर वर्ब देयर, एंड 90% दैट इज करेक्ट. बट समटाइम्स इट हैपन्स ना कि कलेक्टिव नाउन इज ऑल्सो टेकिंग प्लूरल वर्ब. समटाइम्स इट हैपन्स. सी, the committee is against the plan. So committee is against the plan, so we have taken the singular verb here is. committee is here collective noun. acting collectively, ये सारे एक साथ एक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इज हमने यूज किया कलेक्टिव नाउन की तरह पे. जो नियम कहता है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेता है. बट द कमिटी आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन एक्टिंग इंडिविजुअली. जब कमिटी में जो लोग हैं इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं तब वहाँ पे हम लोग आर लगाएंगे, तो वो भी गलत नहीं होगा. ठीक है, लेकिन जनरली इज यूज फॉर द कलेक्टिव नाउन, बट व्हेन वी आर एक्टिंग इंडिविजुअली देन वी विल यूज देयर प्लूरल वर्ब. ओके, नाउ व्हेन आइदर एंड नाइदर आर सब्जेक्ट्स they always take singular verb. Now we have discussed earlier also, neither of them is available to speak right now. अब कोई भी सेंटेंस नाइदर और आइदर और नाइदर से अगर सब्जेक्ट होता है तो उसमें क्या लेते हैं हम लोग? सिंगुलर वर्ब लेते हैं. तो नाइदर से शुरू हुआ है ना, नाइदर ऑफ देम. यहाँ पे देम होते हुए भी, देम क्या है? प्लूरल है, तो भी हम लोग सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? नाइदर है. अगर कोई सेंटेंस नाइदर और आइदर से शुरू होता है, सब्जेक्ट हमारा नाइदर और आइदर है, तो दैट विल ऑलवेज टेक द सिंगुलर वर्ब. अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द इंडेफिनिट प्रोनाउन इन ग्रुप ए रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब. अब आप यहाँ देख रहे हैं ग्रुप ए में एनीवन, नो वन, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी. ये हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा. ये जो हमारे कुछ मैंने बताया, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, इफ दे आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट
एनीवन, जैसे देखो एवरीबडी इज वेलकम, तो एवरीबडी से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा क्या है एवरीबडी, तो एवरीबडी यहाँ पे क्या ले रहा है, सिंगुलर ले रहा है ना, सिंगुलर वर्ब ले रहा है, सो इट इज everybody is welcome. So as per the rule, if the sentence subject is anyone, no one, anybody, nobody, everyone, everybody, somebody, someone, then it will always take the singular verb. And if the subject of a sentence is most, all, many, a few, you can see in this B part, most, all, many, a few, then it will take always the plural verb. Okay, so group B here, it will always take the plural verb. Most are here already, most are here already, so it will take the, it has taken the plural verb, because the rule says most, all, many, a few. If it act as a subject of a sentence, then it will take the plural verb. Now see, some nouns that are plural in form but singular in meaning take singular verbs. You can see, अब देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना, दे आर प्लूरल, दे आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर इन प्लूरल इन फॉर्म, जैसे न्यूज़ ऐसा है ना, प्लूरल जैसा लग रहा है, मिस्टेक्स, मिजल्स, अपेंडिसाइटिस्ट, एरोबिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मॉम्स, सिविक्स, मोल्सिस, अब ये क्या देखो सारे लग रहे हैं प्लूरल टाइप के लग रहे हैं ना, लेकिन सारे सिंगुलर हैं, ये हमेशा ही सिंगुलर, ये कौन सा वर्ब लेते हैं, हमेशा ही ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है. दीज नाउन्स ऑलवेज they seems plural in forms but they are singular in meaning, so they will take the singular verb. And this one here, see, plural in forms and requires the plural verb. अब कुछ verbs ऐसे होते हैं ना, वो plural दिखते भी हैं और verb भी plural ही use करते हैं. Some nouns are considered plural and requires the plural verb, जैसे कि tongs, pants, trousers, spenders, asses, clothes, swords, pillars, सीजर्स, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं और ये प्लूरल वर्ब भी लेते हैं, ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर, सीजर्स के साथ हमें प्लूरल ही वर्ब लगाना है, सिंगुलर नहीं लगाना है, ठीक है. सो दिस विल टेक ऑलवेज द प्लूरल वर्ब. Measurements of length, time, distance and weight take a singular verb, that we have discussed earlier also na. 5 meters is all I need for a uniform. So 5 meters क्या है यहाँ पे, length है ना, measurement of the length. So it is taking, we have taken here singular verb. So always remember, measurement of length, time, distance and weight requires the singular verb. 2 hours is required to finish the game. 2 hours, see, it is here time we are indicating, so it will take the singular verb. When the subject indicates a fraction, percent, part, majority, sum, none, remainder, etc., the verb agrees with the noun in the form of a phrase. See, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. अभी मैंने क्या कहा था, अभी इससे पहले भी we have discussed that if the subject of a sentence is a fraction, ठीक है, अगर फ्रैक्शन में है तो उसके बाद जो नाउन आएगा उसके हिसाब से हम लोग वर्ब डिसाइड करते हैं, ठीक है. अब देखिए 2/3 ऑफ द पाई, पाई यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है. अब फ्रैक्शन क्या है, 2/3 ऑफ, 2/3 के ऑफ के बाद हमारा क्या आया है यहाँ पे, नाउन पाई आया है, तो पाई सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी हमने इज यहाँ पे सिंगुलर डाला है, ठीक है. 2/3 ऑफ द पाई इज गॉन. अब दूसरा देखिए 50% ऑफ द पाइज, अब तो पाइज यहाँ पे प्लूरल आ गया, ठीक है. एंड वी हैव डिसाइडेड, वी नो अकॉर्डिंग टू द रूल, वॉट एवर आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर द फ्रैक्शन, वॉट एवर नाउन विल कम, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डिसाइड द वर्ब. सो पाइज इज प्लूरल है, सो वी हैव टेकन द प्लूरल वर्ब. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, देखते जाइए आप लोग. ऑल ऑफ द पाई, सी अभी मैंने बताया था ना कि ऑल भी आएगा तो ऑल ऑफ द पाई, पाई क्या यहाँ पे है, ऑल प्लूरल होते हुए भी पाई हमारा सिंगुलर है, हमें नाउन के हिसाब से वर्ब चुनना है, ठीक है, सबका नियम अलग अलग है. तो ऑलवेज रिमेंबर द रूल सेज, अगर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे जो भी हो, अगर देखो ऑल क्या है, प्लूरल मानते हैं ना इसको, लेकिन नियम क्या कहता है, अगर ऑल ऑफ के बाद क्या है, सिंगुलर है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, सिंगुलर है, देन वी हैव यूज्ड द सिंगुलर वर्ब हियर. ओके, the verb that follows there and here is singular when the subject that follows the verb is singular. It is plural when the subject is plural. अब देखिए ये बहुत ही थोड़ा सा
उलझा हुआ है, अगर कोई भी सेंटेंस हियर से या देयर से शुरू होता है, ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में हियर आता है या फिर देयर आता है, तो उसका हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, उसके सबसे पास में आने वाला जो नाउन है उसके हिसाब से। देयर इज अ चेंज इन द वेदर, अब देखो देयर इज अ चेंज, इज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे चेंज था, है ना, सिंगुलर था, सिंगुलर है ना चेंज, तो हम लोग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज किए। अब देखिए यहाँ पे देयर आर चेंजेस इन द प्रोग्राम, तो देयर आर क्यों लगाया, यहाँ पे तो देयर इज लगाए थे, यहाँ पे देयर आर क्यों लगाए, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे हम लोग वर्ब क्या लिए, प्लूरल लिए, ठीक है। सो इफ कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर हेयर और देयर से शुरू हो रहा है तो उसके बाद जो भी आ रहा है उसका नाउन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वर्ब डिसाइड करते हैं, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। द प्रोनाउन यू ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल वर्ब, दैट ऑल्सो वी हैव सीन, यू हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेता है, यू आर सो ब्यूटिफुल, यू आर नॉट अलोन, ठीक है। Follow the general rule in pairing subjects and verbs regardless of prepositional phrases of clauses that are sometimes placed in between the subject and verb। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही सेंटेंस में दो दो नाउन आ जाते हैं, तो फिर हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सा नाउन को चुन करके और हमें वर्ब डिसाइड करना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक ही सेंटेंस में दो नाउन आ गए, द कलर ऑफ हिज आईज इज ब्लू, अब देखिए कलर भी यहाँ पे नाउन है, आईज भी यहाँ पे नाउन है, ठीक है, दोनों नाउन है, पर हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी हैव टू डिसाइड द किसके हिसाब से लेना है, आइज के हिसाब से लेना है या कलर के हिसाब से लेना है। तो ऑलवेज रिमेंबर इफ इन अ सेंटेंस देयर आर टू नाउन देन द वर्ब इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन, द सब्जेक्ट इज कलर एंड नॉट आइज, सो हियर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कलर, और कलर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, तो वी हैव टेकन इज, है ना, तो द कलर ऑफ हिज आइज इज ब्लू, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर किसी भी सेंटेंस में दो नाउन आ जाते हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज, पहले वाले नाउन के हिसाब से आपको वर्ब डिसाइड करना है, ठीक है। टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और नॉर रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब, अब देखो अगर कोई भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, ठीक है, अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं, किससे कनेक्ट हो रहे हैं, और से कनेक्ट हो रहे हैं या फिर नॉर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेंगे, उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है। इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और नॉर, ठीक है, तो हम लोग सिंगुलर ही वर्ब यूज करेंगे। माई आंट, ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, माई आंट और माई अंकल, और से हम लोग दोनों को जोड़ रहे हैं, माई आंट और माई अंकल is arriving by train today, so which verb we have chosen here, singular verb, because the rule says, रूल यही कहता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्ट हो रहे हैं और से या नॉर से, तो इट विल टेक द सिंगुलर वर्ब ऑलवेज। व्हेन आई इज वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय आइदर और neither nor, put it second and follow it with the singular verb am। अब देखिए अगर कोई भी सेंटेंस आइदर और हो या फिर नाइदर नॉर हो और वो आई से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तब हमें वर्ब चुनना बहुत मुश्किल होता है, तो किसके हिसाब से हमें वर्ब लेना है, ठीक है, तो दैट आई विल ऑलवेज टेक द एम, तो कौन सा वर्ब लेगा, आई हमेशा ही एम लेगा। neither she nor I am going to the फेस्टिवल, सो आई कौन सा वर्ब लिया, यहाँ पे एम लिया, क्योंकि हमारा नियम ही यही कहता है कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर आई उसमें है और आइदर नॉर और नाइदर नॉर से वो कनेक्ट हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग वर्ब एम चुनते हैं। व्हेन अ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर, पुट द प्लूरल सब्जेक्ट लास्ट एंड यूज द प्लूरल वर्ब। अब देखिए कोई भी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्ट कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, तो हम लोग उसमें हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। नाइदर जेनी नॉर द अदर्स आर अवेलेबल, सो यहाँ तो दिमाग लगाना ही नहीं है, बिकॉज कोई भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से कनेक्ट होएगा तो हम लोग उसमें हमेशा ही प्लूरल वर्ब चुनेंगे, ठीक है। As a general rule, use a plural verb with two or more subjects when they are connected by and। अब देखिए अगर कोई भी सेंटेंस and से कनेक्ट होता है, ठीक है, then that will take the plural verb, ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है कि कोई भी सेंटेंस यूज अ प्लूरल वर्ब विथ टू और मोर सब्जेक्ट्स
दो या दो से ज़्यादा भी सब्जेक्ट्स अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो दैट विल टेक द प्लूरल वर्ब. अ कार एंड अ बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब देखिए कार और बाइक दोनों को जोड़ रहे हैं ना, एंड जोड़ रहा है दोनों को, तो कौन सा वर्ब लिया है हम लोगों ने, आर लिया है. ठीक है, अब कार को सिंगुलर सोच करके इज नहीं लेना है तो वो गलत हो जाएगा. मान लो कि दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होते, अगर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट भी होते और एंड उनको जोड़ रहा होता तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब ही लेते. ठीक है, the expression the number is followed by singular verb while the expression a number is followed by plural verb. Just now we have seen na, the number of people we need to hire is 13. कोई भी सेंटेंस अगर द नंबर से शुरू होगा तो वो सिंगुलर लेगा, और अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर अ नंबर से शुरू होगा तो वो क्या लेगा, प्लूरल लेगा. ठीक है, when either and neither are subjects they always take singular verbs. ये तो हम लोग पहले भी देखे, अगर किसी भी सेंटेंस में neither और either सब्जेक्ट है तो वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा. neither of them is available to speak right. okay, now use of singular verb with sum of money or periods of time. this also we have discussed कि जब भी हम लोग मनी होगा, डिस्टेंस होगा, टाइम होगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ होगा, तो ऑलवेज वी विल टेक देयर सिंगुलर वर्ब. तो उसमें हमेशा ही हम लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे. $10, ठीक है, क्या है यहाँ पे, डॉलर्स प्लूरल है, फिर भी हम लोग सिंगुलर ले रहे हैं. क्यों, बिकॉज $10 इट इज़ अ मनी, सम ऑफ मनी, isn't it? And the rule said कि अगर sum of money है, measurement of length है, time of period है, तो it will always take the singular verb. okay, I hope that you all would have understood this subject verb agreement, because this is the vital part of our grammar. Without knowing this we will not able to write the correct English. So dear children, go through this. I hope you like my video.